Hi everyone, I expect about your health. You all will be very well. So now it's turn to speak English. So now there are so many students are saying that, realizing that when you are talking to someone else on that and you're realizing the you all are unable to talk. So why these things is happening? Because you are unable to talk to anybody else. In that reason, sometimes you feel that when I talk to someone else on that time you realize there are lots of problems are occurring. So what is the reason behind it and which type of things I need to do that so I will become very strong, perfect in talking in English language. So that reason I always try to say that you don't have to worry for all of them because you have to focus on grammar. If you are learning little bit about grammars, then really you will be a speak because I don't think there are so many things to learn to speak English. As I told, little bit knowledge is required of grammar. That's on the basis you can know you can talk to anybody else. First is what is happening for in starting. If your level is zero and you don't know anything about English spoken, then you have to learn little bit about grammars, that is tense. And first, you need to learn converting a skill, how to convert Hindi to English. If you are keeping practice converting Hindi to English, then it will be continue a little time. Then after these things, you will see that there are so many sentences without converting coming out from your mouth. So because this is effect of your converting skill because you had done lots of practice for that. So now it's turn a study about. So now it's turn a study about some tense, some grammars rule that is very important for us. Suppose I will study about present tense. Present tense. In present tense, we'll study about present continuous. Present continuous tense. So before this class, I have already taught about present indefinite. So now this is term present continuous, and we will see that. Suppose I say that I am saying about that man, because in the sentence it is saying that I am saying about that man. So what is a structure making this type of sentence? Suppose a structure of making sentence affirmative. First is what? Affirmative sentence. Sentence structure. What is structure? Structure. Subject plus subject plus am is are plus VING plus object. Object. If I keep memorize and practice these all things, then you will see that I can solve so many sentence on this. So पहचानना कैसे इस सेंटेंस को? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस कोई काम वर्तमान समय में जारी है. जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह सो रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये सारा चीज रहता है. तो हम लोग क्या समझते हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है.
जो काम रहा हूं रही हूं, जैसे मैं पढ़ रही हूं, इसमें क्या देख रहे, मैं पढ़ रही हूं। जिस सेंटेंस में क्या रहा है, रही हूँ, रहे हो, ये सारा चीज रहता है, तो हम लोग क्या समझते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक है। तो इसको पहचानने का यही नियम रूल होता है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हूं, ये सब लगा रहता है, हम लोग समझते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। और आई के साथ हम लोग को पता है कि आई के साथ क्या यूज होता है, एम का यूज होता है। किसके साथ, एम का यूज। आई एम पढ़ रहा हूं, तो वर्ब है रीडिंग या स्टडिंग। रीडिंग में क्या करना है, आई एन जी जोड़ना, मतलब बी का चौथा फॉर्म, इसमें आई एन जी जोड़ देना है, तो आई एम रीडिंग। तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसी में मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग ना। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, आई एम सीइंग। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सब सेंटेंस को हम लोग इस पे आसानी से बना सकते हैं। ये हम लोग को याद रहना चाहिए कि ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बेस पे ये सब पढ़ना है, बनाना है, और इसको प्रैक्टिस करना है। जितना हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बहुत सारे 10-15 सेंटेंस ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई हिंदी का बुक होगा, उसको हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारा सेंटेंस इस तरह का रहता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी आसानी से बना सकते हैं। मतलब कुछ कुछ सेंटेंस में ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, वर्बल पढ़ना है, कॉजेटिव पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, इन्फिनेटिव पढ़ना है, पोजीशन, पोजेशन और कंडीशनल सेंटेंस। इतना ही सारा चीज पढ़ने से, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से हम लोग को एक कन्वर्टिंग स्किल स्ट्रांग हो जाता है, और उसके बाद हम लोग कोई भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत हम लोग को याद रहता है ये ए एन का यूज, इन का यूज, ऑन का यूज, एट का यूज, कहाँ का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का। तो ये सारी चीज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें अब क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर ना, और उसके बाद क्या लोग हम लगाते हैं, नोट। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्या, मैं नहीं मैं नहीं पढ़ रही हूं, तो ये सभी क्या जाता है, ये निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या लिखते हैं, वैसे आई एम नॉट रीडिंग। इसमें क्या होता है, आई एम नॉट रीडिंग। जैसे मैं तुम्हें नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, मैं तुमसे बात, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट लुकिंग यू। मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट गोइंग। दिस सब सेंटेंस आर made on these types of structure. So if you are keep memorizing these all things, and you are knowing what is a structure and how I need to convert
Hindi to English, then really you will be good English speaker. So next is what? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इसमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर? पहले हम लोग क्या लिखते हैं? आर एम इज प्लस सब्जेक्ट प्लस BING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या रहता है कि पहले क्या लिखा रहता है? क्या। जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहे? कोई भी रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सेंटेंस के शुरू में यदि क्या रहता है, क्या तुम पढ़ रही हो, क्या तुम जा रही हो, क्या तुम गा रही हो, क्या तुम सो रही हो, क्या तुम खा रही हो, ऐसे सेंटेंस रहता है। क्या रहता है? ऐसे सेंटेंस रहता है तो उसके पहले क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए। तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखते हैं? क्या क्या मैं पढ़ रही हूं। ये पूछ रहा है क्या मैं पढ़ रही हूं। क्या मैं जा रहा हूं, क्या तुम जा रही हो, क्या वो आ रही है। जैसे हम लोग ओवर द फोन बोलते हैं, बात किसी से याद करते हैं, क्या वो आ रही है। इज इज सी कमिंग। तो हम लोग इसको क्या बनाना है? हम लोग को पहले से पता है कि पहले क्या लगाना है? एम इज आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को ये क्या करना है? एम इज आर लगाना है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या यूज होता है? एम यूज होता है, एम आई। और पढ़ना क्या होता है? वर्ब। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रीड, और इसमें आई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ये रीडिंग, एम आई रीडिंग। अब इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। तो हम लोग क्या कर देंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे एम आई नॉट रीडिंग ना, आर यू नॉट स्लीपिंग, आर यू नॉट गोइंग, सी इज सी नॉट गोइंग, इज ही नॉट कमिंग, मतलब क्या वो नहीं आ रहे हैं। तो ये सभी चीज जो क्या होता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि WH वर्ड क्या होता है? क्या होता है WH वर्ड? WH वर्ड में जैसे हम लोग बात करें WH वर्ड क्या होता है? WH ये होता है जैसे कोई सेंटेंस के बीच में, जैसे क्या लगा रहे, क्यों लगा रहे, कब लगा रहे, कैसे लगा रहे, तो हम लोग क्या समझते हैं? ये WH वर्ड है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, वह क्यों सो रही है, वह क्यों सो रही है, तुम क्यों जा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बनाते हैं? तुम क्यों जा रहे हो। जैसे why are you going ना। और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं? जैसे when is she coming, वह कब आ रही है, वो कब आ रही है। when is she coming, वह कब आ रही है। तो ऐसे सेंटेंस को why are you going, when is she coming,
तो क्या वह क्या दे रही है? व्हाट व्हाट इज सी गिविंग? तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड है। डब्ल्यू एच वर्ड के लिए क्या होता है कि कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड का कोई भी, जैसे वाट व्हेन, कोई भी पहले डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं? एम, आर, इज, उसके बाद आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी, वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सारा क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड का ये स्ट्रक्चर होता है। हम लोग इसको पढ़ना है, इसको समझना है। यदि इसको हम लोग समझ जाते हैं तो आराम से कोई सेंटेंस को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये होता है क्या? डब्ल्यू एच वर्ड। हम लोग को क्या करना है? मेमोराइज करना है, इसको याद करना होता है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। उसी में क्या होता है? फास्ट। क्या होता है? फास्ट। फास्ट में भी सेम होता है, ओनली एम इज आर के जगह पे हम लोग क्या लिखना है? वाज वेयर लिखना है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखना है? एम इज आर के जगह पे वाज वेयर लिखना है। जैसे व्हेन वाज सी कमिंग, वो कब आ रही थी? ये और वाई वेयर यू गोइंग, वो क्यों जा रहे थे? वो तुम क्यों जा रहे थे? यदि ऐसा सेंटेंस रहे तो ओनली हम लोग क्या करना है? वाज हियर। हम लोग को पता होना चाहिए कि एम इज आर का पास्ट क्या होता है? एम इज आर का पास्ट होता है, इसका पास्ट होता है क्या? इसका पास्ट होता है वाज या वेयर। वाज या वेयर इसका क्या होता है? पास्ट होता है। यदि हम लोग इसका वाज वेयर को एम इज आर के जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, उसके जगह पे रखते हैं, तो ये सभी क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये सभी क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग को ये बातें समझना चाहिए। यदि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ जाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। So it means that if you are understanding present continuous, you can also understand past continuous, because both are similar to each other and there is a requirement to replace only was were instead of am is are. Suppose I am saying that when instead of is I am placing was. When was she coming? That means it will be past continuous tense. So I hope that you all are knowing about these all things and this fact. And if you are doing practice about these all things, that means you can understand so many things. So I don't think there is a requirement to know more rules regulation of this sentence, because these are only, these all are enough to knowing for spoken. So I don't think you have any doubt for these things. Thanks for this class.